instead of configuring the hardware physical controller, you need to configure the same policies and everything in the cloud. See, these access points will be, just connect to the network. It will communicate to the cloud and downloading the configuration and store it in the access point level. It's clear now? Okay, yes, okay. Okay. So then you don't need any, the beauty of this solution here, you don't need to invest on the hardware controller. Okay. Suppose, for example, just imagine that, you are going for the Wi-Fi solution. So you need to purchase the access point, you need to purchase the controller, you need to purchase the licenses, you need to purchase the support for controller, you need to purchase the support for licenses, correct? Okay. But in Meraki, you need to purchase the access points along with the licenses. That's fine. You don't need to invest on physical hardware controller. You don't need to invest on, SmartNet support for the controller. So these, at least, the customer can save these costs. Yeah. Okay. Any other questions? No, it's okay. So we don't, it means that we don't need it. Or if suppose we have 10 sites, we don't need the 10 sites hardware, 10 site controller. You don't need it. You don't need it. You don't need it. See, we have the case studies. Yeah, correct. We have case studies. You might be heard about the Starbucks, right? And McDonald's. They all are Meraki customers. In their outlets, they have access points and switches and firewall. So the multiple locations they are managing from the single cloud, single dashboard. Okay. It's okay. Okay, sir. Carry on. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Cisco Meraki considered a leader in the cloud networking technology because it allows users to configure, monitor, and troubleshoot their devices from their dashboard. It has around 838,000 plus customers around the world. I think it's a huge value in the world. And then it has 150,000 million clients connected daily. They are adopting the Meraki technology. And it have around 16.6 million active devices and 3 billion APIs monthly call. When it comes to Meraki, company philosophy is simply simple. They have focused on solving the problem, not building the features. just have example जो लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी जैसे 300 और 400 कस्टमर्स हैं किसी कस्टमर के पास उसके पास 300-400 ब्रांचेस हैं तो अब आप मुझे बताएं कि वो अगर कोई इसको इशू फेस होता है किसी वायरलेस के अंदर या किसी स्विच के अंदर या किसी मराक एक्सेस पॉइंट के अंदर या उसको कोई इशू फेस होता है सिक्योरिटी अप्लायंस के अंदर तो वो कैसे उसको ट्रबल शूट करेगा हेलो हेलो कैन यू हियर मी जी 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 या मैं एग्जाम्पल पूछ रहा था कि अगर एक कस्टमर जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर का 300-400 ब्रांचेस हैं और उसको कोई इशू फेस होता है उसी ब्रांचेस के अंदर जो कि रिमोट साइट्स पे हैं उसकी फायरवॉल के अंदर या उसके स्विच के अंदर या उसको एक्सेस पॉइंट के अंदर तो वो कैसे उसको फाइंड आउट करेगा ऐसे कैसे ट्रबल शूट करेगा मुश्किल बहुत डिपेंड्स करता है कंडीशन ऑफ एरर ये पहले अगर रिमोटली कोई ऐसी सॉफ्टवेयर एरर को तो रिमूव कर दे लेकिन अगर कैसा हार्ड एरर आता है तो उसको वहाँ जाना लाजमी पड़ेगा और फिर ये फिजिकली वेरीफाई करनी पड़ेगी हर चीज़ और कंट्रोल में नहीं कि उसको विजिट एक लाजमी करना पड़ेगा साइट के ऊपर अच्छा इन मराठी के अंदर इसके अंदर कंपनी का फोकस कम जो मेन फोकस है वो यही है कि जो कस्टमर का पेन पॉइंट है उसको रिजॉल्व किया जाए ना कि हर महीने हर साल या हर हर एवरी वीक एक नया फीचर लाया जाए इसमें आप इजीली जो है वो मेराकी डैशबोर्ड से आप लॉगिन करके जो भी कस्टमर के पेन पॉइंट्स हैं आप उसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं अब हेल्थ का फ्यूचर है इसके अंदर आप एक्सेस पॉइंट
वो चेक कर सकते हैं इजीली बाय यूजिंग द Meraki डैशबोर्ड. यू कैन इजीली ट्रबल शूट द Meraki एक्सेस पॉइंट, Meraki firewall and Meraki switches by using the Meraki डैशबोर्ड. अब वाईफाई कनेक्शन में कोई इशू आ रहा है या कोई फायरवॉल के अंदर वैन लिंक के अंदर कोई इशू आ रहा है, तो आप इजीली उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं Meraki डैशबोर्ड से लॉगिन करके. बहुत इजीली आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं. When it's come to Meraki, it has a complete portfolio of complete network solution. It has a wireless access point from small to large enterprise for indoor and outdoor access point available in the Meraki portfolio. In the security appliances, it has also from small to large enterprise security appliances available in the Meraki portfolio. And then Meraki switches and Meraki Insight system manager. I will show you the detail in the coming slides for related to this Meraki appliances. And then security cameras and sensors is available in the Meraki portfolio. They will connect to the Meraki cloud and we can easily troubleshoot these devices from the Meraki dashboard. Meraki is, जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोलर लेस सोल्यूशन है. We do not require any controller to control the access point. We can easily maintain the hardware from the Meraki dashboard. हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं, फास्टर मेंटेनेंस है, इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं कि कहीं पे लिंक में इशू है, कहीं एक्सेस पॉइंट में लिंक में इशू है, तो हम इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं बहुत इजीली. जैसे संजू ने आपको एग्जांपल दी मैकडोनल्ड की, पिज़्ज़ा फूड की, जो पाकिस्तान में अपना नेटवर्क चलाते हैं या, तो वो कैसे ट्रबल शूट करते हैं. उनकी तो ब्रांचेस बहुत सारे रिमोट लोकेशंस पे मौजूद हैं. तो अगर उनको कोई इश्यूज़ आता है किसी रिमोट लोकेशन पे, तो वो हर दफ़ा उनको आईटी रिसोर्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, उस रिमोट लोकेशन के लिए. वो बहुत टाइम एफिशिएंसी इसमें बहुत टाइम लगता है. अगर आप हम हर रिमोट एरियाज़ में बैठ के हम किसी रिसोर्स को यूज़ कर रिसोर्स को भेजें और उसको ट्रबल शूट कराएँ, तो हम इज़िली ट्रबल शूट कर सकते हैं बाय यूजिंग द Meraki डैशबोर्ड. ज़ीरो टच डिप्लॉयमेंट है. एक एग्ज़ाम्पल है, एक कस्टमर है, उसने नया हार्डवेयर परचेज़ किया है. तो हार्डवेयर आने में ऑब्वियस सी बात है, कुछ 2-3 हफ्ते लगते हैं, 4 हफ्ते लगते हैं या 2 मंथ्स लग जाते हैं. आप इज़िली इसे अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दें. जैसे ही वो हार्डवेयर वहाँ आएगा, वो कोई भी बंदा वहाँ पे उसको प्लग इन करेगा, वो पॉलिसी उसको इज़िली पुश कर देगा. MX Security Appliance is a next generation firewall. It's just not doing the layer 3 or layer 3 features, layer 4 features. It also done the layer 7 application visibility and control. It also done a traffic shaping, content filtering. It also an SD-WAN solution. It will support 4G cellular SIM card and failover branch routing and high availability. It has support the IDS and IPS and AM features. It will also support client VPN and site-to-site VPN. It will support small branches to large data centers. MX सिक्योरिटी अप्लायंस जो है ये बेसिकली यूटीएम बंडल के साथ आती है और ये बैक्ड बाय सिस्को टेलोस है. मैं अभी आपको बताता हूँ सिस्को टेलोस कैसे काम करता है. इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं. नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, जैसे आपको पता है. एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग है. एप्लीकेशन आप ब्लॉक कर सकते हैं इजीली. कोई भी एप्लीकेशन है जो कि यूट्यूब है, फेसबुक है, वी कैन इजीली ब्लॉक बाय यूजिंग दिस फीचर. Introduction prevention system based on Cisco Snort 2 and 3. URL content filtering can block the website by using this feature. कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ के हम जो कि कस्टमर काम नहीं करता, जैसे रशिया है, चाइना है या कोई ऐसी भी लोकेशन है, वी कैन इजीली ब्लॉक we can easily use the feature geo-based security feature and blocking the traffic by the country. It also protect by Cisco AMP malware analytics. कोई भी फाइल डाउनलोड होनी है, उसमें मेलवेयर है, तो वो इजीली ब्लॉक करेगा. बैक बाय सिस्को टेलोस है. ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अपडेट्स होती हैं. अच्छा, सिस्को टेलोस कैसे काम करते हैं आपको बता. सिस्को टेलोस एक नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च करती है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेड और अपडेट करती है सिस्को सिक्योरिटी सिग्नेचर्स को. वो एम्पावर करता है कि जी कोई भी थ्रेड उसके हार्डवेयर को इफेक्ट ना करे. एप्लीकेशन विजिबिलिटी कंट्रोल से हम मॉनिटर कर सकते हैं ट्रैफिक को.
कोई भी ट्रैफिक कंटेंट है, हम कंटेंट फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मराकी डैशबोर्ड इजीली। और कोई इजी ट्रैफिक ब्लॉक करना है तो हम मराकी डैशबोर्ड के थ्रू हम इजीली ट्रैफिक को बहुत इजीली इसको ब्लॉक कर सकते हैं। वीपीएन हेल्थ की मॉनिटरिंग हम इससे कर सकते हैं। वीपीएन कनेक्शन का कोई भी इशू है, वीपीएन स्लो चल रहा है, वीपीएन टनल की बैंडविड्थ का इशू है, वीपीएन की परफॉर्मेंस का इशू है, वीपीएन में जिटर आ रहा है, लेटेंसी आ रही है, पैकेट लॉस आ रहा है, तो हम इजीली उसको मॉनिटर कर सकते हैं बाय यूजिंग द मराकी डैशबोर्ड एंड वी कैन इजीली ट्रबल शूट इट फ्रॉम यूजिंग द मराकी डैशबोर्ड। तो एक एग्जाम्पल है इसमें मराकी में आप देख सकते हैं कि मराकी की हेल्थ ये पिक्चर शो कर रही है कि इसमें दो टाइप के वैन एक एक आप देख सकते हैं। इनिशियली इसमें दो वैन लिंक लगे हुए हैं, एक ISP1 है, एक ISP2 है। इसमें आप देख सकते हैं कि डाउन टाइम अगर आएगा तो इसमें अपडेट होगा कि जी डाउन टाइम अगर कोई ISP डाउन हुई है तो कितनी देर के लिए डाउन हुई है, उसमें टोटल यूजेस कितना किया है हमने, कितना हमने यूज किया है बैंडविड्थ, कितनी एवरेज थ्रूपुट आ रही है। कोई स्पीड टेस्ट हम इजीली कर सकते हैं इसके अंदर, कोई पैकेट लॉस हो रहा है या कोई एवरेज लेटेंसी इसमें है तो हम उसमें इजीली इसको चेक कर सकते हैं। स्पीड टेस्ट करके हम इससे सॉरी हम इजीली स्पीड टेस्ट उस पे कर सकते हैं बाय यूजिंग द Meraki डैशबोर्ड। When it come to Meraki switches, Meraki switches मुख्तलिफ मॉडल्स में अवेलेबल है, from small to SMB to large enterprise, from 12 8 port, 12 port, 16 port, and the fiber and the copper port. It has also support layer 7 visibility, voice and quality of service feature, dynamic routing, and layer 2 and layer 3 support. It will also support remote packet capture, cable testing. We can easily do the cable testing from the Meraki dashboard. It will also support the virtual stacking and hardware stacking. It will also support the UPUE feature, which is basically need for the IP phones and the wireless access points. अच्छा मैं एक जगह गया तो मैंने देखा कि एक बंदा हाथ से बीजों के अंदर डायग्राम बना रहा था। लेकिन मराठी के अंदर आप इजीली इसमें जो जो भी कनेक्टिविटी हुई हुई होती है ऑलरेडी, वो इसमें टोपोलॉजी के अंदर अपडेट हो जाती है। अगर आप इसमें देखें तो आपको इसमें कनेक्टेड डिवाइसेस नजर आएंगी कि कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड हुई हुई हैं, और ये आप इजीली इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और इजीली किसी भी कस्टमर का अगर वो मांगता है कि जी नेटवर्क डायग्राम हमसे शेयर करें तो आप इजीली उससे आप ये डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? हेलो? नो सर, कोई सवाल नहीं मुझे। और कोई? अच्छा मेरा कि ये जो डेटा सेंटर ना रीजन्स वाइज कहाँ है, ये साइट्स कहाँ है कितनी, और रीजन्स कहाँ का है, इसके फेटवर्स क्या है, इसका क्लाउड का और लेटेंसी का क्या होता है इसका? असल में इसके जो डेटा सेंटर है वो 5 रीजन में है, मतलब 5 रीजन में HA में डिप्लॉय हुए हुए। अच्छा ये 5 रीजन में डिप्लॉय हुए हुए और ये HA के अंदर डिप्लॉय हुए हैं। अगर फर्ज करें कोई भी एक फेल हो जाता है तो सेकेंडरी खुद खुद ब खुद अब हो जाता है। ठीक। ठीक है। अच्छा, राफे भाई का शायद कोई सवाल है, 1 मिनट रुकिएगा जरा। राफे भाई सवाल कर रहे हैं कोई। अच्छा राफे भाई, जो आपका डायग्राम है ना, हिस्ट्री हिस्ट्री ये मैनेज नहीं करता। बेसिकली होता ये है कि जो भी डायग्राम अपडेट होती है ना, तो ये आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका चेक करने का एक तरीका ये है कि इसमें इवेंट्स आ रहे होते हैं, उस इवेंट्स के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस कनेक्टेड हुई है और कौन सी डिवाइस अभी रिसेंटली किस टाइम पे कनेक्टेड हुई है, तो उस इवेंट्स के थ्रू हम उसको चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें हिस्ट्री नहीं होती कि हम अगर एक हफ्ते पहले कोई नई डिवाइस लगी थी तो एक पुरानी कोई डायग्राम हम डाउनलोड कर लें, वो इसमें नहीं है। अच्छा, एमएस स्विचेस के 2 टाइप के लाइसेंसेस होते हैं, एक इंटरप्राइज। जहर भाई, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो जाती है, आती आती अभी आवाज अभी ठीक है मेरी आवाज? अभी ठीक है आवाज? आ रही है, लेकिन बीच में कभी चंद सेकंड्स के लिए ब्रेक हो जाती है। अब मुझे उसी वक्त बताते करें। ठीक हो गया सनवाला भाई? अभी मेरी आवाज क्लियर है आपको बिल्कुल? ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, एमएस एमएस
जो स्विचेस हैं उनकी 2 टाइप की लाइसेंसेस होती हैं। एक एंटरप्राइज लेवल लाइसेंसेस है कि एडवांस। एंटरप्राइज लेवल लाइसेंस में वॉइस एंड वीडियो क्वालिटी ऑफ सर्विस और एंटरप्राइज सिक्योरिटी लेयर 2 और लेयर 3 के फीचर्स बेसिक होते हैं और मल्टी गिग सपोर्ट और वर्चुअल और फिजिकल ट्रैकिंग सपोर्ट होती है। एडवांस के अंदर फुल राउटिंग लेयर 3 फीचर्स सपोर्ट होती है इसके अंदर। एक सवाल है इसमें, वर्चुअल स्टैकिंग क्या मीन, मतलब कैसे होगी वर्चुअल स्टैकिंग? अच्छा, वर्चुअल स्टैकिंग ऐसी होती है, मैं आपको बताऊँ, जो फ्रंट पोर्ट्स होती है ना, उसके थ्रू आप वर्चुअल स्टैक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, अपने क्लाउड के थ्रू? वो बेसिकली हाफ नहीं, नहीं, बेसिक ये तो देखें, जो वर्चुअल स्टैकिंग होती है वो उसकी क्लाउड के थ्रू ही होगी, मतलब कनेक्टेड पोर्ट होंगी, लेकिन वो क्लाउड पे आप डैशबोर्ड के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं इज़िली। बस ये बता देंगे ये स्टैकिंग केबल्स है, बस स्टैकिंग पोस्ट। स्टैकिंग के भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा आप उसको बता दें भाई ये वर्चुअल स्टैक है। ठीक, स्टार्ट हो। जैसे जैसे एसएमबी स्विच का होता है ना, जैसे एसएमबी स्विच का आपको शायद आइडिया हो कि जी फ्रंट स्टैकिंग है, 1300 1200 स्विचेस में फ्रंट स्टैकिंग सपोर्ट करती है, वो वर्चुअल स्टैक कहलाती है। ठीक है, सही। ठीक है। अच्छा, मराकी वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या एक बार इसे दोबारा रिपीट कीजिएगा, दोबारा रिपीट कीजिएगा स्टैकिंग को। ये वर्चुअल स्टैकिंग सपोर्ट करती है। जैसे आपने फीचर देखा होगा एसएमबी स्विचेस के अंदर, जो फ्रंट की जो पोर्ट्स होती हैं वो वर्चुअल स्टैक सपोर्ट करती हैं। हम इजीली मराठी डैशबोर्ड के अंदर इसको वर्चुअल स्टैक कर सकते हैं इस स्विच की पोर्ट्स को। ओके ओके। जब मराठी वायरलेस के अंदर जो सोल्यूशन है वो मुख्तलिफ मॉडल्स मौजूद हैं। वो वाईफाई 6E, वाईफाई 6E और वाईफाई 7। ये WIDS WIPS के फीचर सपोर्ट करता है। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, गेस्ट एक्सेस पॉलिसीज, वी कैन इजीली इंटीग्रेट द DNS लेयर प्रोटेक्शन, सिस्को अम्ब्रेला विच इज कॉल्ड, it has Wi-Fi 6 and Wi-Fi 7 model, which is also I've told you. We can also easily troubleshoot the location analytics, wireless health by using the Meraki dashboard. Application traffic shaping, we can do by using the Meraki dashboard. अच्छा, एक एग्जाम्पल है ये कि कौन सी डिवाइस कब ऑन बोर्ड हुई है और उसकी क्या परफॉर्मेंस है, वो हम मेराकी डैशबोर्ड से इजीली मॉनिटर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगर कोई फ्रीक्वेंसी के इश्यूज आते हैं या कोई ऐसे इश्यूज आते हैं हेल्थ के एक्सेस पॉइंट के, तो हम इजीली उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं मेराकी डैशबोर्ड से। मराकी एंटरप्राइज लाइसेंस, मराकी MR वायरलेस लाइसेंस के भी 2 लाइसेंस मौजूद हैं, एंटरप्राइज और एक एडवांस। एंटरप्राइज में हम हेल्थ का फीचर, एनालिटिक्स फीचर, एंटरप्राइज सिक्योरिटी, वी कैन डू दैट बाय द एंटरप्राइज लाइसेंस। एडवांस के अंदर हम अम्ब्रेला के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं और एडॉप्टिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिस्को ने अभी नई लाइसेंसिंग लॉन्च की है, नया हार्डवेयर लॉन्च किया है जिसको वाईफाई 7 कहते हैं, मराकी वाईफाई 7 और सिस्को वाईफाई 7। अच्छा, ये वाईफाई 7 जो सोल्यूशन है ये दोनों तरीके से मॉनिटर और मैनेज हो सकता है। ये वायरलेस एक्सेस ये मराकी के थ्रू भी मैनेज हो सकता है। सेकेंडली ये आपका जो वायरलेस कंट्रोलर है ये उसके साथ भी चल सकता है, 9800 वायरलेस कंट्रोलर के साथ भी काम कर सकता है। अच्छा, इसमें SQ आपको पहले जब हम एक्सेस पॉइंट लेते थे या एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करते थे, तो हमें लाज़मी रेगुलेटरी डोमेन डालना पड़ता था हर हर रीजन के हिसाब से। अब रेगुलेटरी डोमेन डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेगुलेटरी डोमेन हर रीजन का मौजूद है उसके अंदर सेम। अच्छा, हम जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो हम इजीली इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, चाहे वायरलेस कंट्रोलर के साथ हो या मराठी डैशबोर्ड के साथ हो। उसमें सिंपल लाइसेंसिंग है, आप चाहे एक ले लें, कंट्रोलर के साथ ले लें या मराठी उसके साथ लें। जिसमें यूनिफाइड लाइसेंसिंग है, मैंने आपको बताया आप ऑन प्रेमिसेस ले लें या हाइब्रिड ले लें या क्राउड मैनेजमेंट के ले लें, तो आप इसको यूनिफाइड लाइसेंस को आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। आपको सेपरेट लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्ज करें कि आप मराठी के साथ देते हैं तो आपको नया लाइसेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जी मुझे ऑन प्रेम सोल्यूशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो मुझे इसके लिए सेपरेट लाइसेंस चाहिए हो। तो वाईफाई 7 के अंदर 3 टाइप्स के इसमें अवेलेबल हैं वाईफाई 7, जो कि मैनेज हो सकते हैं मराठी से भी और वायरलेस कंट्रोलर से भी। 9176i, 9176D1, ये इंटीग्रेटेड ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है और
सिंगल 10 गीगाबिट मल्टी गीगाबिट सपोर्ट करते हैं, 2x2 4x4 मीमो सपोर्ट करते हैं ये वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स। जब मराकी में मुख्तलिफ टाइप के सेंसर्स भी आते हैं जो कि मैनेज होते हैं मराकी एमवी कैमरास के थ्रू और मराकी वायरलेस एक्सेस पॉइंट के थ्रू। जब इसमें आपको कोई वायर की ज़रूरत नहीं है, ये BLE ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करता है, जो कि अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है सेंसर्स के रिलेटेड वो शेयर करता है, या तो एमवी कैमरा को शेयर करेगा, वो डैशबोर्ड से मराठी डैशबोर्ड से शेयर कर देगा, या ये वाईफाई को शेयर करेगा वायरलेस को, और वायरलेस उसको शेयर करेगा। इसकी 5 ईयर्स की बैटरी लाइफ है। इसमें डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हैं, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर है, वाटर लीक सेंसर है, ओपन डोर ओपन एंड क्लोज सेंसर्स है, पावर सेंसर्स हैं, इंडोर क्वालिटी सेंसर्स है, ऑटोमेशन बटन टच सेंसर्स हैं, टेम्परेचर सेंसर्स हैं। इंडोर लोकेशंस का है इसमें कोई? रियल टाइम लोकेशन इंडोर की होती है। इंडोर लोकेशन से मुराद थोड़ा आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। जीपीआरएस जैसे इंडोर जीपीआरएस चलता है, मैं अगर मूव कर रहा हूँ फैक्ट्री में कहीं पे भी, तो मेरी लोकेशन मॉनिटर हो जाए कि यार मैं टैग लगाया हुआ है, किसी इस रूम से उस रूम में चला गया, तो वो रियल टाइम लोकेट कर रहा होता है चीज़ें। तो सर सर इसके वो बेनिफिट देखिए, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर पावर इंडोर क्वालिटी सेंसर्स हैं, वो मोशन सेंसर नहीं है। नहीं नहीं, मोशन सेंसर नहीं, मैं जीपीआरएस टाइप की इंडोर जीपीआरएस होता है इंडोर के, ये वो लोकली जैसे बीएलई के थ्रू वो सपोर्ट कुल डिवाइस बीएलई के थ्रू सपोर्ट करती है कि मैं BLE के थ्रू बेसिकली अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो शेयर करता है, क्योंकि इसमें कोई वायर तो है। शायद क्योंकि इसका थ्रूपुट तो इतना ज़्यादा होता नहीं, लेकिन उसका ये होता है कि मैं अगर मैं से एक इन्वायरमेंट है, एक फ्लोर है, मैं अपने एम्प्लॉय के पास वो सेंसर लगा दूँ, कहीं पे मूव करेगा वो रियल टाइम लोकेशन आएगी यार इस तरफ है ये, या कोई व्हीकल ले लें, कोई मूवमेंट ले लें, पता चल जाता है कि जैसे फैक्ट्री एरिया है, मैं चाह रहा हूँ कोई रिस्ट्रिक्टेड आदमी कानून आदमी जाए तो उसको वो बीप बजाते हैं, और इधर से मैं अलाउ किया हुआ इस एरिया में जाने का, दूसरे में ना जाए तो वो बीप करते, उसके सेंसर आते हैं अलग से बीएलई के, तो वो सपोर्ट नहीं, वो उसमें नहीं है, वो मैं चेक भी कर लूंगा, आपको गेट बैक करूंगा इसके ऊपर, लेकिन वो इसमें अवेलेबल नहीं है। Let me answer this. Okay. अच्छा, बहुत जो आप कह रहे हैं ना, that's also doable through DNA spaces. Okay. The only thing that you need is a mechanism to identify a user with some tags. ठीक है, अब वो टैग कोई मोबाइल डिवाइस भी हो सकती है, वो कोई पैसिव आईडी सेंसर भी हो सकता है, जैसे हमारे एम्प्लॉय कार्ड होते हैं ना, इस टाइप की भी कोई चीज़ हो सकती है। और from infrastructure perspective, you just need DNA spaces, which is part of Cisco, और ये चीज़ आप अचीव कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है। इसका कोई मुझे डिटेल मिल सकती है, मतलब मुझे मिल जाए थोड़ी सी? मैं अभी आपको थोड़ी देर में चैट विंडो पे भेज देता हूँ। अच्छा ठीक ठीक। मैं राफे भाई, मराकी स्पेसेस जो है वो मराकी वायरलेस एक्सेस पॉइंट से हम कर सकते हैं ना। Well, it works both way for Meraki as well as for Catalyst. फॉर कैटलिस्ट, या बोथ फॉर द एक्सेस पॉइंट ऑन। अच्छा ज़रा भाई मुझे एक चीज़ बताइएगा, इसमें बहुत सारी मेराकी माशाल्लाह चीज़ें तो मैंने देखी है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। इस पे कोई एआई बेस्ड कोई एआई बेस्ड है या मेराकी या नहीं है? और एक सवाल ये, दूसरा ये कि इसमें हीट मैप जनरेट होता है या नहीं होता? जी जी, हीट मैप जनरेट होता है इसमें। ना होता है तो वो हमें कुछ एआई पे सजेशन देगा या नहीं, या वो बस हीट जनरेट कर देगा? देखिए, हीट मैप जैसी एक्सेस पॉइंट लगता है ना, तो वो उसकी हीट मैप जनरेट करेगा कि जी कहाँ कहाँ ये इसकी सिग्नल्स की स्ट्रेंथ है। ठीक है। तो हमें कोई सजेशन वगैरह देगा हमें कि यार ये आपने जी बिल्कुल ऐसा है, देगा ये बिल्कुल ट्रबल शूट। देखिए, मराठी डैशबोर्ड है ही इसीलिए कि वो उसको इजीली कस्टमर की जो पेन पॉइंट्स, देखिए कस्टमर के पेन पॉइंट्स है क्या, कस्टमर के पेन पॉइंट्स अगर आप मार्केट के लोग हैं, आपको अंदाजा है कस्टमर के पेन पॉइंट्स हैं, वायरलेस के इशूज़ हैं, डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रही, असल में वायरलेस में हेल्थ के इशूज उसमें पैसेजेस क्या आते हैं कि वहाँ पर डिप्लॉयमेंट ही गलत होती है, विदाउट एनालिसिस को, विदाउट उसके हीट मैप के और क्या कहते हैं प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन के, तो उसमें ऐसी चीज़ है स्मार्ट के वो बता दे कि यार आपने इसकी जी जी, ये स्टेप बताता है। है और क्या कहते हैं पावर ज़्यादा बढ़ा दी है, करीब कर दिए इसको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। इसमें ये आप इजीली इसमें मराठी डैशबोर्ड से आप इजीली चेक कर सकते हैं इसमें। अच्छा।
इजीली आप ये सोचें, एक कस्टमर है, उसको कोई पोर्ट में इशू आ रहा है स्विच की, चाहिए तो वो उसको कैसे मॉनिटर करेगा? वो मराकी डैशबोर्ड से जाके इजीली उसको चेक करेगा कि कोई इससे पावर इशू तो नहीं है, कोई पोर्ट डाउन तो नहीं होगा, ये वो इजीली उसमें जाके उसको शट डाउन कर सकता है, नो शट कर सकता है, या बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इजीली मराकी डैशबोर्ड से कर सकता है। केबल टेस्ट कर सकता है, मतलब आप फर्स्ट करें केबल अगर फॉल्टी है तो वो इजीली केबल टेस्ट कर सकता हीट मैप के हवाले से मैं अपना लेआउट इसमें इंसर्ट करूँ, डालो, अपलोड करूँ, और उसको मैं मल्टीपल पॉइंट बता दूँ यहाँ मैं राखी लगाना चाह रहा हूँ। वो मुझे सजेस्ट करेगा कि ये इस तरह से इसको ये चीज़ इतने चैनल रखनी चाहिए, इतना डिस्टेंस चाहिए, इतनी पावर देनी चाहिए, सजेस्ट करेगा मुझे। मेरा है। काम ये सजेस्ट करेगा, बिल्कुल सजेस्ट करेगा। रिप्लायमेंट का काम आसान हो जाएगा, वरना 90% रिप्लायमेंट ऐसी होती है, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, समझ रहे हैं ये? तो उससे इश्यूज बहुत आते हैं, चैनल ओवरलैपिंग होती है, पावर ओवरलैप होती है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। चैनल और ओवरलैपिंग इजीली बता देते हैं कि जी यहाँ पे चैनल पावर ओवरलैपिंग ये इश्यूज हैं, और आप इजीली उसको आप बराबर इस बोर्ड से। प्लेस किया वो गलत जगह पे किया, आपको इस जगह पे होना चाहिए एज पर आपके निकल आउट के हिसाब से। जी बिल्कुल बताता है, बिल्कुल बता देगा ऐसा भी। क्या पता, ठीक है सर। अच्छा, इसमें स्मार्ट कैमराज, जैसे एम कैमराज आते हैं, मुख्तलिफ टाइप के एम कैमराज हैं, जिसमें बिल्ट इन स्टोरेज भी मौजूद है, डीप, आपको कोई DVR और NVR लगाने की ज़रूरत नहीं है, दे विल इजीली मैनेज बाय द मराकी डैशबोर्ड। आप इसको वीडियो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे मराकी डैशबोर्ड हो। आप इसमें डिफरेंट टाइप की लाइसेंसिंग आती है, और इसमें आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं मराकी के डिफरेंट प्रोडक्ट से, सेंसर से, वायरलेस से, स्विचिंग से, और हम इजीली हीट मैप चेक कर सकते हैं, व्हीकल्स की डिटेक्शन इससे चेक कर सकते हैं। पावर्ड बाय AI है ये, जो इनके स्मार्ट कैमरास हैं। आप इजीली इसमें वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें लोकल वीडियो भी मौजूद होती है, और हम इसमें सॉफ्टवेयर भी, इसमें लाइसेंस भी परचेज कर सकते हैं कि हम कितने कितने साल का हम रिटेंशन रखना चाहते हैं, 30 डेज़ का, 60 डेज़ का, 90 डेज़ का। इसमें 3 टाइप के लाइसेंस आते हैं, एंटरप्राइज़, एमबी सेंस और क्लाउड आर्काइव। एंटरप्राइज़ में बेसिक टाइप के फीचर्स होते हैं जो कि सेंट्रलाइज़ मैनेजमेंट कर सकते हैं, सिक्योरिटी अपडेट, फर्मवेयर पैचेस। एमबी सेंस कैमरास के अंदर हम सेंसिंग AI पावर्ड बाय AI है, तो हम लोगों की मूवमेंट, व्हीकल की मूवमेंट, ऑडियो, और इससे हम इसको चेक कर सकते हैं इजीली। अच्छा, हम क्लाउड आर्काइव से इसकी जो भी डाउनलोड, जो भी इसकी वीडियोस होती हैं जो हम अपलोड कर सकते हैं, वो इजीली अपलोड हो जाती हैं क्लाउड आर्काइव के थ्रू। हम 1, 3 और 5 साल का ऑप्शन है, उसको परचेज कर सकते हैं, और कितने साल या कितने महीने या कितने डेज आपने रखनी है, तो आप इजीली इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मराकी का एक सोल्यूशन है सिस्टम मैनेजर। ये बेसिकली मैनेज करता है आपकी डिवाइसेस को, ब्रिंग योर ओन डिवाइस हो या कंपनी प्रोवाइडेड हो, जैसे लैपटॉप है या मोबाइल है। हम इजीली इसको मॉनिटर कर सकते हैं मराकी डैशबोर्ड से। कोई भी पॉलिसी है हम उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम कोई एप्लीकेशन फोर्स करना चाहें कि यही एप्लीकेशन चले। अच्छा, इसके यूज़ केसेस जो हैं, वो यूज़ केसेस ऐसे हैं, जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर जो बच्चे यूज़ करते हैं, आपके टैबलेट यूज़ कर रहे होते हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम इजीली पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर। इजीली एप्लीकेशन पुश कर सकते हैं कि जी यही एप्लीकेशन जो है वो जो लैपटॉप है या टैबलेट है, वो वही यूज़ करे। अगर कोई इश्यूज़ आता है या चोरी हो जाता है या स्टोल हो जाता है, तो हम डाटा को रिकवर भी कर सकते हैं और इजीली वाइप भी कर सकते हैं डिवाइसेस के थ्रू। मराकी के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाती है, iOS हो या विंडोज़ हो या मोबाइल डिवाइसेस हो या वो मशीन हो, इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इन्फोर्स कर सकते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये इसमें एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ टाइप की डिवाइसेस इसमें कॉन्फ़िगर हुई है। इसमें विंडोज़ भी है, मोबाइल भी है। इसमें डिवाइस दिखा रहा है कि जी कनेक्टेड है, कितनी परसेंट उसकी बैटरी यूज़ हो रही है। अब ये बिरिंग योर ओन डिवाइस है, कंपनी प्रोवाइडेड है, तो आप इज़ीली उसको टैग कर सकते हैं। आप इज़ीली उसमें पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप इज़ीली इसमें आप उसको डिवाइस को मॉनिटर कर सकते हैं, और इसमें अगर आपने कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो इजीली रिपोर्ट जनरेट करके मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं कि जी हमारे पास ये डिवाइसेज़ हैं और ये हमने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की है।